Good evening, church, and welcome to our midweek service. So let's pray as we worship. Father God, we want to thank you, Lord, for this beautiful time, O Lord. Thank you, Lord. We believe, Lord, that your presence is there in our midst right now, O Lord. Thank you, Lord, for leading us and guiding us in each and everything that we do, O Lord. Yes, Lord, whatever we do, O Lord, we want to give you all the glory, honor, and praise, O Lord. We pray, O Lord, for this evening, O Lord. Give us a beautiful time, O Lord, as we sing and worship the Lord. So let's stand. He is the Lord, and He reigns on high. He is the Lord, spoken to darkness, created the light. He is the Lord, who is like unto Him, never ending in days. He is the Lord, and He comes in power when we call on His name. He is the Lord. Show your power, oh Lord our God. Your word is power, oh Lord our God, our God. The gospel, O Lord, is the hope for our nation. You are the Lord. There's power of God for our salvation. You are the Lord. We ask not for riches, but look to the cross. You are the Lord. And for our inheritance, give us the lost. You are the Lord. Show your power, oh Lord our God.
Lord, this evening, O Lord, for all that you have done in our lives, O Lord. Thank you, Lord, you came down for us, O Lord, that you became humble and you gave your life for us, O Lord, so that we can enjoy one day eternal life with you in heaven, O Lord. Once again, Lord, we want to thank you, Lord, for each and everything, O Lord. We want to pray, O Lord, that your presence goes, O Lord, wherever we go, O Lord. Yes, Lord. We want to live our lives completely, O Lord, surrender our lives into your hands, O Lord. You lead us and guide us, O Lord, each and every day, O Lord. Yes, Lord, once again, Lord, we want to thank you and we worship you for who you are. करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। Yes, Lord, as we are gathered here today evening, O Lord, we want to tell you, Lord, that you alone are a true and living God, O Lord, and you alone we want to follow all the days of our life, O Lord. Yes, Lord, we surrender our lives today into your hands, O Lord. Thank you, Lord, for leading us, O Lord. And we pray, O Lord, especially for this evening, O Lord. We pray all those who are listening, O Lord. Yes, Lord, you speak to us, each one of us, O Lord. We want to hear from you, O Lord. Give us a beautiful time this evening, O Lord. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Once again, good evening, church. Just short introduction. फिर से नमस्कार बोलना चाहता हूँ, थोड़ा परिचय का संदेश देना चाहता हूँ। I want to speak on patience in Job's life. हाँ. और मैं जो है बात करना चाहता हूँ अय्यूब का जीवन में जो धीरज है उसके बारे में। In our
real life, we go through some circumstances. और हम जो इस जीवन में जो हम जीते हैं, हम बहुत परिस्थितियों से जाते हैं। Sometimes those circumstances are very difficult. और कई बार जो है ये परिस्थिति बहुत ही मुश्किल रहते हैं। It can be some major sickness, और हो सकते हैं बड़ा बीमारी हो सकते हैं, or it can be even a death of a family member, या हो सकता है किसी परिवार के कोई व्यक्ति का मौत भी हो, or it can be even a big financial loss in your life. या फिर बहुत बड़ा आर्थिक मतलब पैसे का नुकसान हो सकते हैं। And during those times, और इन दिनों में we may think that God has forsaken us, और इन दिनों में हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर हमें छोड़ दिया है, and we even may think that God no longer protects us. और हम ये भी सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी रक्षा ही नहीं करते। And those times we start thinking negative, और उन दिनों में हम सब जो है नकारात्मक से सोचते हैं, and because our negative thinking, we may even draw far away from God. और इस नकारात्मक सोच की वजह से हम परमेश्वर से भी दूर चले जाते हैं। But when we pray to God during those situations लेकिन वो उन परिस्थितियों के दिन में जब हम प्रार्थना करते हैं and try to understand God's will, और जब हम परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं, this negative thinking will completely stop, ये नकारात्मक सोच जो है पूरी तरह बंद हो जाती है, and we will start trusting God even during those difficult times. और फिर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उन मुश्किल दिनों में भी। Today I am going to speak regarding a character in Bible called Job. और जो है मैं आज बाइबल में जो एक किरदार है अय्यूब के बारे में बोलना चाहता हूँ। We read about Job in the Bible हम जो है अय्यूब के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं that he was a man of great faith, और वो जो है बड़ा विश्वास का व्यक्ति है, because even during those difficult times क्योंकि ले उन मुश्किल दिनों में भी his faith was steadfast. उसका विश्वास एकदम अटल था। So in Job's life everything was going smoothly. और अय्यूब के जीवन में पहले जो है सब कुछ सही चल रहा था। Job had everything in his life. उसके जीवन में वो जो कुछ भी चाहता था सब कुछ था। He had a large family. उसका बड़ा परिवार था। He had lot of wealth बहुत सारा धन दौलत थे and a lot of blessing of every kind. हर एक तरीके के आशीष भी थे। We can even say during those times और हम ये भी बोल सकते हैं उन दिनों में that Job was one of the richest man on the earth. और अय्यूब जो है उन दिनों में बहुत धनवान व्यक्ति भी था इस दुनिया में। In Job chapter 1 verse 2 and 3, और अय्यूब के पहले अध्याय वचन 2 और 3 में वैसा बोलते हैं some of the things it describes about Job had with him. और जो चीज जो अय्यूब के साथ था वो बताती है। It says that he had 7 sons and 3 daughters, और यहाँ पर बोलते कि 7 बेटे और 3 बेटी थी 7,000 sheep, और 7,000 भेड़ थे, 3,000 camels, 3,000 ऊंट 500 donkeys, और 500 जोड़ी बैल, and he had large number of servants. और फिर बहुत सारे नौकर चाकर थे। Usually today when we see people who are very rich, और ऐसा आज की तारीख में जब हम देखते हैं जो धनवान लोगों के they do not want to, the rich people do not want to spend time with God. और वो धनवान लोग जो है परमेश्वर के साथ समय बिताना नहीं चाहते। But Job was completely different person. लेकिन अय्यूब जो है पूरी तरह से अलग व्यक्ति था। He feared God वो परमेश्वर का भय मानता था and he was faithful to God और वो विश्वास योग्य था परमेश्वर के लिए, even though he was very rich. और धनवान होने के बावजूद भी। And even God was much pleased with Job, और फिर परमेश्वर भी जो है अय्यूब से बहुत ही खुश था। and because God was pleased with Job's faith, और क्योंकि परमेश्वर अय्यूब के विश्वास से इतना खुश था, then God said to Satan, और परमेश्वर ने जो है शैतान से बोला, there is no one on earth like Job. और इस दुनिया में अय्यूब की तरह ऐसा कोई नहीं है। And God told to Satan और परमेश्वर ने शैतान से बोला about Job अय्यूब के बारे में that Job is blameless, और जो अय्यूब जो है एकदम खरा व्यक्ति है, and he is a man who fears God and he hates evil. और वो अय्यूब ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर का डर मानता है और फिर जो बुरी चीज है उससे नफरत करते हैं। So just imagine God bragging about Job. तो सोचिए परमेश्वर जो है अय्यूब के बारे में बड़ाई कर रहे हैं। So in same way God must be bragging about you from heaven. और उसी तरह जो है परमेश्वर भी हमारी तरह हमारे भी बड़ाई करते रहते हैं स्वर्ग में।
God must be telling about you from heaven और परमेश्वर भी स्वर्ग से हमारे बारे में बोलते रहेगा that you are not like other people in this world. कि तुम जो है इस दुनिया में जैसे लोग हैं उस तरह नहीं हो। God must be telling from heaven और परमेश्वर स्वर्ग से ये भी बोलते रहेगा that you are a person who fears God और तुम ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर का डर मानते हैं and you are a person who hates every evil. और तुम ऐसे व्यक्ति जो हर एक बुराई चीज से नफरत भी करते हैं। And Satan heard all this thing from God और शैतान ने ये सब सुना परमेश्वर से and he told God और वो परमेश्वर से शैतान बोला that if you remove all the blessings in Job's life, अगर तुम अय्यूब के जीवन से सारा आशीष ले लोगे then Satan said to God that Job will curse on your face. और फिर शैतान ने परमेश्वर को बोला कि अय्यूब तुमको जो है एकदम बददुआ देगा। So today Satan has two jobs. और आज शैतान के पास दो ही काम है। His first job is to tempt humans to commit sin. और पहला उसका काम ही कि वो मनुष्य को जो है पाप करने के लिए ललचाए। And his second job is to accuse the sinners. और उसका दूसरा काम जो है वो जो है दोष लगाए विश्वासी के ऊपर सबके ऊपर। He makes the sinners to feel guilty. और वो जो है पापी लोगों को जो है दोष में जो है जीने के लिए लगाते हैं। He makes them guilty for the mistake that they have made. वो ऐसे ही दोष में रहना वो है शैतान एक ही काम करते हैं विश्वासी लोगों की वो दोष में जिए। So in this story we read that Satan had challenged God और इस कहानी में हम पढ़ते हैं कि शैतान ने जो है चुनौती दिया परमेश्वर to को remove all blessings from Job's life. कि वो सारा जो है आशीष जो है अय्यूब के जीवन से निकाल दे। And we see that Job lost everything that he had. और हम देखते हैं कि अय्यूब जो है सब खो बैठा जो कुछ भी उसके पास था। He lost his sheep, और उसने वो जो भेड़ बकरी थे वो सब खो बैठा। lost his camels, और जो ऊंट थे वो भी सब खो बैठा। he lost his servants, और जो है नौकर चाकर थे वो भी खो बैठा। and all his sons and daughters they died. और उसके जो भी बच्चे भी थे बेटी सब लोग मर गए। In all this thing we see that only one thing that Job did not lose. और इन सारी चीजों में जो है हम एक ही चीज देखते हैं कि अय्यूब एक ही चीज नहीं खो बैठा। Job did not lose his faith in God. और अय्यूब जो है परमेश्वर में जो विश्वास था उसे खोने बैठा। And during those difficult times we see और उन मुश्किल दिनों में हम देखते हैं that Job worshipped the Lord. और परमेश्वर की वो स्तुति आराधना किया उन दिनों में भी। He said, Job said, और अय्यूब ने बोला naked I came from my mother's womb, तो बोले कि मैं बिना कपड़े का माँ के गर्भ से आया था and naked shall I return there. और बिना कपड़े के ही मैं निकल जाऊंगा इस दुनिया से। The Lord gave, कि परमेश्वर ने मुझे दिया है and the Lord has taken away. परमेश्वर ने ले लिया। And he said, blessed be the name of the और Lord. वो बोलते कि परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। And during all this time we see that Job did not sin. और इन सारे चीजों में हम देखते हैं कि अय्यूब ने कभी पाप नहीं किया। Job had lost everything. अय्यूब सब कुछ खो बैठा था। And he was left only with his wife. और उसके साथ सिर्फ उसकी पत्नी रह गई थी। Even his wife told Job, और उसकी पत्नी भी बोली curse God and die. और तू परमेश्वर की निंदा कर और मर जा तू भी। But instead of cursing God, और वो निंदा करने के नहीं निंदा किया। during all this difficult time, इन मुश्किल दिनों में भी वो निंदा नहीं किया परमेश्वर की। what Job did was he blessed the name of the Lord. और अय्यूब ने एक ही काम किया वो है परमेश्वर की स्तुति आराधना की। Sometimes we meet people who will tell us, कई बार जो है हम लोगों से मिलते हैं जब लोग हमको बोलते हैं it may be because of your sin that you are suffering in your life. हो सकता है आपके पाप की वजह से आप जो है दुख से जा रहे हो। And same thing happened in Job's life too. और जो है उसी तरह होते हैं अय्यूब के जीवन में भी। Job's friend blamed Job for all the trouble that has happened. और जो है अय्यूब के दोस्त लोग जो है उसके ऊपर दोष लगा रहे थे अय्यूब के ऊपर ही पूरा उसके दोस्त लोग। Job's friend said that you must have done some sin. और अय्यूब के दोस्त लोग बोल रहे थे कि तुमने कुछ तो पाप किए है। And that is why you are going through so much suffering in your life today. इसीलिए तुम जो है कुछ ऐसा भयानक चीजों से गुजर रहे हो। So is there anything that we can learn today from Job's life? क्या ऐसा कुछ चीज है कि जो हम अय्यूब के जीवन से सीख सकते हैं? So today instead of asking God why I am suffering, तो आज क्यों ना जब हम परमेश्वर से कभी-कभी पूछते हैं क्यों मैं ऐसा तड़प रहा हूँ?
we need to ask God हमें परमेश्वर से ये पूछना चाहिए what God is trying to do during this suffering. कि परमेश्वर इन मुश्किल दिनों में क्या करना चाहते हैं मेरे जीवन में, What God is trying to produce in my life during these trials. और ये मुश्किल दिनों में मेरे अंदर से क्या वो पैदा करना चाहते हैं. If you see, when before gold gets ready, और हम देखते हैं कि सोना तैयार होने से पहले it has to pass through fire, और वो जो है आग के भट्टी से निकलना पड़ते हैं, and then we get a pure gold. फिर हमें जो है शुद्ध सोना मिलती है. So sometimes God wants us to suffer, तो कई बार जो है परमेश्वर चाहते हैं कि हम सताव से गुजरे, so that we can be more dependent upon Him. ताकि हम हमेशा उसके ऊपर निर्भर रहें. Maybe God is trying to put our attention towards God. तो परमेश्वर जो है हमारा हम परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी तरफ देखें. We might be even be sinning. और हो सकता है हम पाप में भी हो. However, like as we have seen from Job experience, और जैसे कि आप भी हम देखते हैं आयुब के जो है जीवन से, it is not only because of sin there is a suffering. और ऐसे नहीं कि पाप का वजह से ही वो मुश्किल में गया, ऐसे नहीं देखते इधर. So finally we see because of Job's patience, और आखिर में देखते हैं कि आयुब की धीरज की वजह से God restored double whatever Job lost in his life. परमेश्वर जो है आयुब को पूरा दुगना दे देते हैं जो कुछ भी वो खो बैठा था. And it was restored only because Job was faithful to God during these trials. इसलिए भी परमेश्वर देते हैं कि उन मुश्किल दिनों में भी आयुब जो है विश्वास योग्य रहा परमेश्वर के साथ. So we can see that we cannot question what is God's motives, तो हम जो है परमेश्वर को सवाल नहीं उठा सकते कि उसका क्या उद्देश्य है, because the Bible says that His ways are beyond human understanding. क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो रास्ता है वो मनुष्य के सोचने की कल्पना से भी परे है. God has a purpose in suffering. परमेश्वर का हर एक चीजों में मकसद है जो भी हम सताव से जाते हैं. Finally, I would like to end by verse from Isaiah chapter 55 verse 9. और यशायाह का 55वां अध्याय वचन 9 पढ़ के बंद करना चाहता So हूँ. here God is telling Isaiah, और यहाँ पर जो है परमेश्वर यशायाह को बोल रहे हैं, as the heavens are higher than the earth, और क्या जैसा जो स्वर्ग जो है ऊंचा है पृथ्वी से, so are my ways higher than your ways. और उसी तरह जो है मेरा भी जो रास्ता है परमेश्वर का रास्ता वो मनुष्य से भी ऊपर है. And God is telling, my thoughts are higher than your और thoughts. परमेश्वर ये भी बोल रहे हैं कि मेरा जो ख्याल है वो तुमसे भी ज्यादा ऊंचा है. So today, let us have a patience like how Job had patience. तो आज जो है जैसा आयुब का जीवन से हम धीरजता देखते हैं उसी तरह हमें भी धीरजवान रहना है. So that we can, whenever we go through trials and sufferings in our life, ताकि जब भी हम मुश्किल या सताव से जाते हैं we will always be faithful to God and worship Him during those difficult और times. हमेशा हम जो है परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहेंगे और उन मुश्किल दिनों में भी. Amen. आमीन चर्च. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned, unclean, singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sin and my sorrows and made them His very own, and bore the burden of Calvary, and suffered and died alone, singing how marvelous, how
I'll ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. So let's welcome Pastor Chandra for the message. मुझे संदेश बताया क्रिस्टोफर जी ने। क्रिस्टोफर के लिए फिर से ताली देंगे। और आज के बहुत संदेश था, बहुत कुछ खास तौर से परमेश्वर तकलीफ इसलिए भी लेकर आते कि हमारी बढ़ोतरी के लिए भी, तरक्की के लिए भी, और आजू बाजू के लोग भी हमें देखते रहते हैं ताकि हम उनके लिए भी आशीष का कारण ठहरे। कि आज जो है मैं ऐसा सोच रहा था ये संदेश देने से पहले, क्रिसमस मालूम है ना कभी है सब लोग को? क्रिसमस कुछ ही दिन में है अभी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग क्रिसमस में ही है। तो आज का संदेश भी जो है क्रिसमस के जैसे ही है थोड़ा बहुत कुछ, लेकिन गौर से देखिए। मैं कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। स्वर्गीय पिता, आज हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस वचन के लिए प्रभु। और इस वचन को आशीष दीजिए, अभिषेक कर मुझे और आए हुए सभी लोग को आशीष भी दीजिए प्रभु। और जो देख रहे हैं ऑनलाइन उन्हें भी आशीष दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं लूका का पहला अध्याय और वचन 26 से पढ़ूंगा, ओके। और अगर बाइबल है तो बहुत अच्छी बात है, आप बाइबल खोलिए और बाइबल खोलिए, मैं पढ़ता हूँ। और यहाँ पर जो है मैं पढ़ने से पहले आप कुछ नए लोग हैं उसके लिए मैं बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ऐसे है बैकग्राउंड, क्योंकि लूका का पहला अध्याय में हम देखते हैं कि 26वां वचन बोलेगा। तो 26 वचन से पहले क्या है, यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में सब कुछ कहा गया है, किस तरह वो पैदा होगा, उसके माँ बाप जो है जकरिया है, और फिर बाद में यूहन्ना बपतिस्मा का जो माँ है वो एलिशबा है, ओके। पहले से स्वर्गदूत आके उन्हें आशीष दिए है और उन्हें बोला है कि आपको बच्चा होएगा। किसको बोला है? सिर्फ जकरिया को। जकरिया उसका पिता है, होने वाला पिता है। और फिर उसे स्वर्गदूत आके बोला है। और जैसे ही वो स्वर्गदूत आके बोलते हैं, और क्योंकि वो जकरिया इन दिनों में अभी कितना साल का है? 60 साल का, ओके। वो एक याजक है, मंदिर में सेवा करते हैं और बहुत ही पवित्र काम है वो, बहुत कुछ। और वो जब वो मंदिर में कार्य कर रहा था, सेवका है, तब स्वर्गदूत आके उसको बोलते कि तेरी पत्नी को एक बच्चा पैदा होएगा, उसका नाम ये रखना, और वो आने वाला जो मसीह है उसके लिए वो रास्ता बनाएगा। सिंपल, ओके। अभी पार्ट 2, अभी दूसरा भी एक और है, यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ। नए लोग के लिए पहले से बोलूंगा कि यहाँ पर 16 साल की अभी एक लड़की है, उसका नाम मरियम है, ओके। 60 साल की औरत एलिशबा, एलिजाबेथ, जो भी उसका हिंदी में एलिशबा बोलेंगे, और 16 साल की मरियम, ओके। 16। और उसके कोख से कौन जन्मने वाले? आप सबको मालूम है ना, कौन जन्मने वाले? यीशु मसीह। तो बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर। और एक जो है 60 साल से इंतजार में थे वो लोग, ओके, और उनको बच्चा नहीं हुआ, और वो परमेश्वर अभी देने वाले हैं। उसका अनाउंसमेंट घोषणा हो चुकी है। अभी देखो मरियम को किस तरह परमेश्वर स्वर्गदूत बोलते हैं। 6वें महीने में, मतलब 6वें महीने क्या है, किसका 6वें महीना? यहाँ पर 26वें वचन में, मतलब एलिशबा जब अभी वो गर्भवती हो चुकी है, ओके। एलिशबा वो उसका 6वां महीना जब चल रहा है, तब मरियम के पास स्वर्गदूत आकर क्या बोलते हैं? 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। और वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा,
और प्रभु परमेश्वर के उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने में सदा राज्य करेगा। और आगे 38वां वचन, ये सब बोलने के बाद मरियम क्या बोलती है? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार हो। ओके। और उसी तरह जब कई बार जो है परमेश्वर का जब वचन आते हैं हमारे पास, तो हमें क्या करना चाहिए? उसे मानना चाहिए। कई बार मानना चाहिए, मानना मतलब विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास नहीं करे तो पहले वचन में क्या हुआ? एक आदमी वो बोलने के लायक नहीं रहा। कौन है वो आदमी? जकरिया। ओके। जकरिया को परमेश्वर ने जब बोला तुझे एक बच्चा पैदा होगा, वो विश्वास नहीं किया। बोला कैसा हो सकता है, मैं तो 60 साल का हूँ और मेरी पत्नी भी ज्यादा उम्र हो गई है, वो तो बच्चे जनने की लायक नहीं है। और इस तरह वो बोलने लगा। कई बार जो है हम बाइबल भी पढ़ते हैं और कई बार जब कुछ चीजें आती है तो हम ऐसे ही कुछ बोल देते हैं, लेकिन वैसा नहीं। जब कई बार जो है हमें विश्वास करना चाहिए, है ना। जब पतरस को भी पूरी रात मछली नहीं मिली थी, तो यीशु ने उसको बोला, यीशु कौन था उन दिनों में? एक सुतार था, कारपेंटर का काम करता था। तो उसको बोले, यीशु ने बोला कि नाव लो और जाके जाल डालो। वो दिन का समय था और सभी मछुआरे जानते हैं कि रात को मछली मिलते हैं, दिन में नहीं मिलते। लेकिन पतरस ने क्या किया? आप बोल रहे प्रभु, इसके लिए मैं डालूंगा। हमारा भी कई बार क्या होना चाहिए? जब परमेश्वर का वचन हम बाइबल से पढ़ते हैं, पुलपिट से सुनते हैं, तो क्या होना चाहिए? प्रभु तू बोल रहे तो मैं करूंगा, बस खत्म। आगे नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? जकरिया के जैसा एकदम मैं गूंगा बहरा हो जाऊंगा, एकदम मैं बोलने के लायक नहीं रहूंगा, है ना। हे परमेश्वर, मेरी यही प्रार्थना है कि जब परमेश्वर का वचन आते हैं हम सब के लिए, कि हमें भी क्या करना है? हमें सिर्फ मानना है। कई बार कुछ परमेश्वर का वचन मायने भी नहीं रखते। अरे ये क्या बोल रहे, इतना मुश्किल है ये कैसे हो सकते, है ना, कैसे हो सकते? लेकिन परमेश्वर के लिए सब चीज संभव है, क्योंकि वो परमेश्वर संभव का परमेश्वर है। असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो 60 साल के, जैसे कि अब्राहम को भी परमेश्वर ने बच्चा कितने जब उम्र में दिया? 100 साल का था तब दिए, है ना। उसकी भी औरत बांझ थी। कई बार जो है परमेश्वर हमें आशीष देने से पहले क्या करते हैं? बोलते हैं कि रोको। क्यों रोकने के लिए बोलते हैं? क्योंकि अभी इस रूम में मैं देखता हूँ, देखो यहाँ पर आपका उम्र कितने? 13। और उसके बाद सबसे जवान, अच्छा शिजू कितना उम्र का? 32। उसके बाद कौन आते हैं जवान? ओके, आपका उम्र 40। देखो 13, 32, 45, सॉरी आपका 40। ओके, आप उनसे भी जवान हैं। और आप? 40। ओके, ठीक है। मैं 40 ही लूंगा, क्योंकि आपके केस में बैंक हॉलीडे आपको माफ करता। आप 40 साल के और मैं 53 को। ओके, तो यहाँ पर ही हम देखते हैं कि यहाँ पर 6 तरीके के 6 दशक के लोग हैं इस रूम में, है ना। 6 दशक के लोग, मतलब एक 10वां, एक है 30वां, 40, 45, जो भी है, ये 50 का भी मैं सामने खड़ा हूँ। तो क्या है, हमें कई बार परमेश्वर क्या करते हैं? रोकते हैं। क्या रोकते हैं? कि हमें आशीष नेक्स्ट पीढ़ी को हम दे, है ना। जैसे कि अभी समझो एल शीबा गर्भवती हुई। ओके, अभी आगे का वचन में क्या होते हैं? वचन 39 से वो 45 तक क्या होते हैं? मरियम क्या करती है? तुरंत वो निकल जाती है, क्योंकि वचन में क्या बोला है पहले से कि तेरी जो चाची है उसको भी बच्चा पैदा होने वाले, एलशीबा। तो वो क्या करती है? तुरंत मिलने के लिए जाती है, क्योंकि उसको उत्सुकता है। वो 60 साल की है, कैसा उसको बच्चा पैदा होगा, है ना। वो ये कैसा हो सकता है? चलो मैं देखता हूँ। और ऊपर से परमेश्वर का दूत ये भी बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? वो 6 महीने की हो गई है, 6 महीने गर्भवती भी है, चलो मैं जाके मिलती हूँ, है ना। कई बार क्या होता है, परमेश्वर क्या करता है? हमें ठहराते, ब्लेसिंग आशीष देने से पहले। क्यों ठहराते? ताकि जब हमारे सामने कोई वही परिस्थिति में रहे तो हम उन्हें समझा सके, हम उनको प्रोत्साहन दे सके, है ना। हमारे अंदर परमेश्वर ने क्या किया? पहले से बहुत कुछ चीजें डाला है, और हम पर है कि हमें उसे जन्म देना है।
हम जन्म देंगे, लेकिन हमें कई बार हम क्या करते हैं, वो जन्म देने से पहले हम लोग बहुत कुछ रुकावट डालते है ना, रुकावट डालते। जैसे कि हम सबके अंदर परमेश्वर ने प्रेम डाला है, किसी के अंदर प्रेम है, किसी के अंदर माफ करने का बहुत अच्छा क्या बोलते हैं वरदान है, गुण है, या फिर किसी के अंदर दौलत का गुण है, ओके, किसी के अंदर एकदम जैसे कि धीरज का गुण है। जब हम कलीसिया में आते हैं तो हम ये सब क्वालिटी हम एक दूसरे में देखते हैं, हमें सब एक दूसरे का कहानी भी मालूम है ना। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि एक साथ, और हम क्या करते हैं एक दूसरे का से वो सब सीखते हैं। तो इसीलिए कलीसिया में आने का क्यों जरूरत है, ताकि हम सब एक दूसरे से मिले और हम एक दूसरे को देखें कि उसने क्या किया था उन वो परिस्थिति में, तो मुझे क्या करना है, क्योंकि एक्सपीरियंस है ना। हम सब मसीह में कौन है, भाई बहन है, तो हम सब के पास क्या है, एक्सपीरियंस है। तो हम सब एक दूसरे को देखकर ही क्या करते, सीखते, ताकि हम कोई गलत नहीं कर सके। ताकि मैं कभी कभी एक दूसरे को पूछता हूँ कि आप, या फिर पूछने से पहले वो ही बोल देते कि वो परिस्थिति में क्या क्या किया था, तो वो बताते, तो उसके बाद क्या होते, मेरा विश्वास बढ़ते, क्योंकि मैंने सुन लिए। इसी तरह जब हम कलीसिया में आते, आउटरीच में आते, या फिर इतवार के सभा में आते, या फिर कोई भी चर्च के जहां पर भी हम लोग मिलते हैं उसमें आते, तो क्या होते, हमें वो हमारे अंदर जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने आशीष हमारे अंदर दिया है, तो क्या होते, वो ये होते। देखो आगे का वचन पढ़ता हूँ, ये वचन बहुत ही मस्त है। 39 वचन, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर जाकर एलशीबा को नमस्कार किया। जो ही एलशीबा ने मरियम को नमस्कार सुना, तो ही बच्चा उसके पेट में उछला। किसके पेट में, एलशीबा के पेट में, क्योंकि उसके गर्भवती अभी 6 महीने से। तो जैसे वो एक दूसरे से मिले तो क्या हुआ, उसका बच्चा एकदम उछला। और फिर बोलते कि और एलशीबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। चर्च में आने से क्या होता है, हमारे अंदर भी जो हम परमेश्वर ने हमें गर्भवती किए, हमारे अंदर बीज डाले, तो क्या होते है, वो जब बीज बढ़ते हैं तो क्या होते है, हमारे अंदर से भी ये उछल होती है, हमारे विश्वास की बढ़ोतरी होती है। और पुकार कर कहा कि ये तू स्त्रियों में धन्य और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया है, जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई है वह पूरी होगी। धन्य है वह मनुष्य जिसने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया, और वो बात क्या होगा, पूरा होगा, है ना। ये लोग दोनों ने क्या किया, विश्वास किया। जकरिया ने विश्वास नहीं किया, वो आया मंदिर से और बोलने का एकदम बंद ही हो गया, मुक्का हो गया वो, और वो सीधा गया। और दूसरा दिन ही क्या हो गया, एलशीबा गर्भवती हो गई। अब यहाँ पर इन लोग सब बोलते हैं, अरे मरियम बोलते हैं मुझे सब मालूम है, क्योंकि स्वर्गदूत ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तू कैसे गर्भवती हो गई, और मुझे बहुत खुशी है। और जैसे कि इधर ये भी वचन में ही बोलते हैं ना कि जैसे तुमने मुझे नमन किया, तो क्या हो गया, मेरे पेट का बच्चा जो है वो क्या हुआ, वो उछल पड़ा। तो हमारे अंदर भी ऐसा बहुत सारे चीजें रहते हैं। जब हम एक दूसरे से जब हम लोग मिलते हैं तो क्या होते हैं, वो हमारे अंदर जो विश्वास है या फिर जो भी हमारे अंदर जो वरदान है वो क्या होते हैं, उछलते हैं, और वो क्या होते हैं, बढ़ोतरी होते हैं, है ना। जैसे कि हम यहाँ पर क्यों आते हैं, हमारे विश्वास का बढ़ोतरी के लिए। जैसे कि अभी समझो 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। जब एक स्त्री गर्भवती होते तो क्या होते, धीरे धीरे क्या होते, आनंद होता है, और कुछ उसके चेहरे से दिखता है, बराबर, कि उसके चेहरे से दिखता है, उसके चेहरे में वो चमक आती है। और अगर समझो अगर उसके चेहरे से नहीं दिखेगा, उस शरीर से नहीं दिखेगा, तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, अरे कुछ तो गड़बड़ है, बच्चा नहीं हुआ है, कुछ तो है, नहीं दिख रहे। लोग बोलेंगे, लोग तरह तरह की बात करेंगे, शायद इसमें कुछ तो किए है गड़बड़। और इसीलिए क्या है, वो हमें दिखाना है। और जब आप गर्भवती होते हो तो क्या होते हैं, हमारा खाने पीने का भी नियम पूरा बदल जाते हैं। उसी तरह
यहाँ पर पुरुष लोग भी बैठे हैं, उनके लिए भी बोलना चाहता हूँ, जब आप लोग भी जिम में जाते हो तो क्या होते हैं? बॉडी दिखते है ना। मैं बोलता हूँ मैं जिम में जा रहा हूँ, लेकिन इसी तरह रहेगा तो क्या आएगा? कुछ जाते नहीं, बंडल बोलते हैं तुम उसका शरीर जैसे है वैसे ही है, मोटा ही है, कुछ भी बदला नहीं है ना। पुरुष लोग भी वैसा, उन लोग क्या करते? दिखाते, और उनका भी खाने पीने का क्या होते हैं? तौर तरीके बदल जाते। उसी तरह जब मैं परमेश्वर में गर्भवती होती हूँ तो क्या होते हैं? हम सब गर्भवती होते तो क्या होते हैं? हमारा भी रहन सहन क्या होते हैं? वो बदल जाते हैं। अभी मेरे को क्या ज्यादा जरूरत है? मैं परमेश्वर के इसमें उसकी उपस्थिति में ज्यादा रहना चाहती हूँ, है ना, ज्यादा रहना चाहता हूँ। या फिर मैं जो है परमेश्वर का ज्यादा गीत गाऊंगी। जैसे कि एक रिवाज है, भारत में एक रिवाज है, जब कोई स्त्री जब गर्भवती होती है तो क्या करते हैं? उसका कोई भी पति का जो है बड़ा फोटो सामने रखते, बराबर ना, कि बच्चा उसके ऐसे ही हो। जस्ट उदाहरण के तौर से आपको ले रहा हूँ, उदाहरण। लेकिन हमारा उदाहरण कौन है? स्वयं यीशु मसीह। यीशु मसीह का एक ही उद्देश्य है हमें इस दुनिया में रखने का, कि हम उसकी तरह बने, उसकी ऐसा माफ करने वाले बने, उसके ऐसा गुण हम लोग पाए, है ना। वो गुण हमारे अंदर, सबके अंदर वो डाला है, बीज बोया गया, और वो बीज जो है बढ़ोतरी करना हमारे ऊपर है। क्योंकि मैंने एक जिम का एक्सरसाइज वो एग्जांपल बोला, तो उसमें क्या है, जब आप जिम में जाते हो तो क्या होता है? वो दिखते हैं। अगर नहीं जा रहे हो तो क्या होगा? अब बोलते हैं बंडल मार रहे, कुछ तो हो रहे नहीं, झूठ बोल रहे हैं, जाके कुछ करते ही नहीं, जाके उधर सो के आते, ऐसा बोलेंगे ना। तो उसी तरह परमेश्वर ने क्या किया? हम सब के अंदर वो बीज डाले। तो तीन चीजें बोलकर मैं बाद में थोड़े टाइम में बंद करूंगा। तो परमेश्वर ने पहला चीज क्या किया है? पहले तो हमें उसने गर्भवती की है ना, उसने हमारे अंदर वो बीज डाले, और वो बीज का है? परमेश्वर ने पहले योजना बनाई थी। किसका योजना? एलशिबा और जकरिया का शादी होने से पहले परमेश्वर ने पहले से योजना बनाई थी कि वो दोनों को बच्चा होने वाला है। लेकिन वो कितने साल में होगा? 60 साल की उम्र के बाद। और ताकि एलशिबा समझे कि क्या होते जब सताव से जाते हैं, क्या होते जब लोग ताने मारते, क्या होते जब लोग तुम्हें बांझ बोलेंगे, है ना। ये सब उसे एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, ताकि वो दूसरों को बताए, दूसरा कोई उसकी तरह दिखे तो वो बताए कि कोई औरत कितनी मुश्किल से जाती है। तो कई बार परमेश्वर भी हमें क्या करते हैं? कई परिस्थितियों से हमें वो सिखाते, ताकि हम भी जो है दूसरों को सिखाए। जैसे कि इस रूम में हमने देखा 6 दशक के लोग बैठे है ना, अलग अलग उम्र के लोग। तो हम भी क्या करते हैं? एक दूसरे से हम सीखते रहते है ना, ताकि जब हम भी एक दूसरे से मिले तो क्या होते हैं? हमारे अंदर से भी उछल कूद होती है ना, उछल कूद होती है, और वो हमें मालूम पड़ता है, हमारा विश्वास बढ़ती है। जैसे कि हो सकता है आज शाम हम सब पूरे दिन के काम के बाद बहुत थकावट से भी आए रहेंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में आते तो क्या होते है? एक ताजगी आती है। हम अभी ऐसा हम आए थक के, लेकिन हम जाते हुए ऐसा लगता है कि एकदम ताजा होके गए। तो परमेश्वर ने वो क्या किया? बीज बोया है। तो वचन 24 में ऐसा बोलते कि इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कहला के छुपा रखा। और क्या किया? बीज किसने बोया? परमेश्वर ने उसे गर्भवती किया। जकरिया से ये नामुमकिन था, परमेश्वर ने उसे गर्भवती किया। तो हम सबको परमेश्वर ने ये किया। दूसरा बात बोला है क्या है? परमेश्वर ने बुलाया इस सब चीजों को। इस सब चीजों के किसने ये किया? रचनाकर्ता कौन है? परमेश्वर स्वयं। 13वें वचन में ऐसा लिखते हैं कि 13वां वचन लूका का 1:13 ऐसा बोलते हैं कि परंतु स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे जकरिया भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलशिबा तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। जब हम परमेश्वर की ओर से कुछ भी आते तो हम क्या करते? परमेश्वर ने जो दिया है उसका ही नाम हम रखते हैं। यहाँ पर 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक जो है एलशिबा के गर्भ में क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा, जॉन। यूहन्ना का मतलब क्या है? परमेश्वर अनुग्रहकारी रहा। याद रखो ये नाम। यूहन्ना का मतलब क्या है? परमेश्वर अनुग्रहकारी रहा।
और मरियम के कोख से जो बच्चा पैदा होगा उसका नाम क्या है? क्या है उसका नाम? यीशु। यीशु का मतलब क्या है? छुड़ाने वाला, बचाने वाला। ओके, मतलब उद्धार करता। उद्धार करता का मतलब क्या है? बचाया, बचाने वाला। तो क्या है? अनुग्रह और क्या है? यहाँ पर उद्धार करता, छुड़ाने वाला। ये दोनों क्या हो गए? मिल रहे। क्योंकि अगर उद्धार करता, समझो उद्धार करता आता था, या फिर समझो पहले ये आता था, अनुग्रहकारी, अनुग्रह आता था, तो आके क्या करता था? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उन दोनों को साथ में आना है, इसीलिए हमें भी साथ में आना है। चर्च में जब हम आते हैं तो क्या होते हैं? वो साथ होती है। तो जब वो क्या होते हैं? कार्य आगे बढ़ती है, परमेश्वर का कार्य। तो उसी तरह अनुग्रह मतलब यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म क्यों हुआ? परमेश्वर के लिए रास्ता बनाने के लिए। ओके, और फिर यीशु मसीह क्यों जन्मे? इस दुनिया के पूरा उद्धार देने के लिए। वो पूरा दुनिया को बदलने वाले, और दुनिया को बदलने के लिए किसका जरूरत है? पहला यूहन्ना बपतिस्मा का, मतलब रास्ता बनाने के लिए, है ना? वो उस तरह पैदा हुआ। तो परमेश्वर ने ये सब कार्य किए। दो कोख है, लेकिन दोनों में बहुत कीमती, हम सब के अंदर वो बीज है। याद रखो, हम सबका जो जगह है इस चर्च में कोई दूसरा नहीं ले सकते, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अद्भुत बनाया। और आप सब जैसे कि आप आए हो, तो परमेश्वर ने आपके अंदर वो वरदान दिया है, जो आपका कार्य कौन कर सकते हैं? सिर्फ आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं। तो परमेश्वर ने क्या किया? हमें पहला तो मैं बोला कि परमेश्वर ने गर्भवती किया, दूसरा क्या? परमेश्वर ने हमें बुलाया। तीसरा बात क्या है? प्रभु ने हमें जोड़ा है। क्या किया? परमेश्वर ने हमें क्या किया? एक दूसरे से जोड़ा है। वरना हम तो विश्वास नहीं कर सकते थे कि हम एक दूसरे को जानते थे क्या? मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले तो मैं आप लोग को नहीं जानता था, या फिर आप भी मुझे नहीं जानते थे। क्या हम जो है 3-4 साल से या फिर 7-8 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो क्या होगा? परमेश्वर ने ये मुलाकात करवाए ताकि हमारे अंदर से कुछ तो एक अद्भुत उत्पन्न पैदा हो, है ना? कुछ तो पैदा हो जिसका परमेश्वर ने बीज बोया है। और परमेश्वर चाहते कि उसी तरह जो है ये कार्य उसका बढ़ता ही जाए। क्योंकि जब ऐसा होती है तो क्या होते है? परमेश्वर का राज्य में और क्या होते है? बढ़ोतरी आती है। और इसीलिए जो है हमें क्या करना चाहिए? चर्च का हर एक कोई भी चीज है उसे उसमें आना चाहिए, ताकि परमेश्वर का कार्य बढ़े और हम भी बढ़ते जाए उसमें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें क्या किया है? पहले वो बीज डाला है हम सब के अंदर। और परमेश्वर तीसरा बात बोला कि परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। हमें एक दूसरे से कौन जोड़ा है? परमेश्वर। क्योंकि मैं भी एक दूसरे को नहीं जानता था, आप लोग भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने जोड़ा है। और जो जोड़ा गया है उसे कोई जो अलग नहीं कर सकते, है ना? तो आइए प्रार्थना करते हैं और यहीं पर बंद करेंगे, और उसके बाद हम कुछ देर जो है मिशन यात्रा के लिए प्रार्थना करेंगे वीडियो बंद होने के बाद। ओके, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते आज इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद देते, तेरा कार्य महान है प्रभु। तू सब कुछ जानते हैं प्रभु, हमारे जीवन में क्या चल रही है। और धन्यवाद देते प्रभु, तूने हमें बुलाया है, तूने हम सबको पसंद किया है प्रभु, और तेरा योजना महान है प्रभु। और हम धन्यवाद देते प्रभु, हमारे चर्च में मरियम जैसा बहुत सारे लोग हैं जो हमें, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें वो प्रोत्साहन करते हैं, और फिर उसके वजह से हमारे अंदर जो है विश्वास या फिर जो कुछ भी है हमारे अंदर, वो बीज तूने बोया है, उसकी परवरिश होती है और वो जो है उछलता है प्रभु। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आज शाम हमारे पास्टर के लिए भी जो मिशन यात्रा में है, उनके साथ किरण और पूरे टीम। हम ये भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो ट्रिप जो है बहुत ही फलदायक हो प्रभु। हम यही प्रार्थना करते हैं, तेरे नाम की घोषणा हो प्रभु। हाँ प्रभु, तूने कहा है यरूशलेम और जुडिया, समरिया और दुनिया के अंत तक प्रभु। और प्रभु, ये मौका इस चर्च के द्वारा तूने दिया है, हमारे लोगों को तूने वहां तक लेकर गया प्रभु। उनकी यात्रा में सुरक्षितता दे प्रभु, और सब कुछ तेरी योजना के अनुसार हो प्रभु। इसमें कोई भी बाधा शैतान की ओर से ना आए,
हम ये भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, यहाँ पर आए हुए सभी लोगों के लिए प्रभु, उनके जीवन में भी जो कुछ चल रही है प्रभु, तू सब जानते हैं प्रभु। हम ये प्रार्थना करते हैं आज शाम प्रभु, उनकी प्रार्थना को तू सुन प्रभु, और उनकी प्रार्थना में तू उत्तर दे प्रभु, और हमारे अंदर प्रभु तूने जो भी बीज बोया है वो बढ़ता ही जाए प्रभु, और हम घटे प्रभु। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु आज इस दिन के लिए, इस समय के लिए। और हम ये भी प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है या फिर इस वीडियो को ऑनलाइन में देख रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह को कभी नहीं जानता है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आए और वो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर मर गए। बाइबल कहती है कि जो कोई भी उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करेगा उसे आनंद काल का जीवन मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, अगर ये प्रार्थना आप करना चाहते हो तो मेरे पीछे ये प्रार्थना अपने मन में बोलिए और विश्वास कीजिए। बोलिए, प्रिय यीशु, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह कि आप मेरे लिए इस दुनिया में आए और मेरा सारा पापों को लेकर क्रूस पर मर गए। आपको गाड़ा गया और आप 3 दिन के बाद जिंदा हो गए। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह, और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ परमेश्वर कि जब भी मैं मरूँ मुझे जो है स्वर्ग में ले ले, मुझे बचा ले प्रभु, और मुझे आप में बढ़ने के लिए मदद भी कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। थैंक यू।